Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So, we are in the midst of the 5th chapter. So, we have completed 5.24, but we are keeping a small recap from 5.22 because it's been a long gap. So, in 5.22 Bhagavad Gita, Lord is saying, Yehi samsparsha jab hoga, dukkha yone revate, adi antavante konte natesu ramate buddha. Wherein Lord is saying, ki an intelligent person does not take part in sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, as such pleasures have a beginning and an end, and does not delight in them. They do not delight in that. Now, इसको एक समझने के लिए एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ. What do we do to make ourselves happy? Because this verse, even if you ask me to give 10 days lecture, I can give. It's so powerful verse. No, it has in-depth understanding. We all are search of happiness, but we are all दुखी. कौन सुखी है यहाँ पे? Everyone feels बाजू वाला सुखी है मुझसे. Everyone has a feeling. The neighbor is happier than me. No one is happier. Everyone is sad. The form, the style, जो तरीके का दुख है ना, वो शायद थोड़ा थोड़ा अलग होता है. But दुख सबको है. तरीका अलग. Yesterday Vishal was telling me one of your relatives just fell down from the bed and मर गए बोल के. I mean sounds so funny. Just someone falling from the bed and dying. I mean, what is life? Full of dangers. Every second, every split second. हमको ये पता नहीं हम लोग घर पहुंचेंगे कि नहीं. We don't know. We all see that in news, clips. आजकल CCTV का एक फायदा है. लोग अलग अलग तरीके से मर रहे हैं वो देखने में. और क्या बात? CCTV, someone died working out in the gym. Must have seen. So what is the benefit? Is it stopping you from the problem? Or CCTV is able to stop you from the problem? Thief आया चोरी करके गया. Very nice. Recording है. पैसा मिला वापस? चोर को मिला? पकड़ा? So CCTV cameras don't solve the problem, but we think we are advanced by having more technologies. But the worst part is, we want the surrounding to be happy. That's what we do to gain our happiness. हम क्या सोचते हैं? आप लोग सब सुखी रहोगे, मतलब मेरे आजू बाजू में या surrounding me, if people are happy, I am in a happy situation. If I am having an AC, if I am having a nice house, if I am having everything conducive to me, I will be happy. But contrary to that, you never find happiness. Because happiness is inside. न तेसु रमते बुधा. बुधा मतलब अक्लमंद इंसान है, वो इसमें रमेगा नहीं. क्यों नहीं रमेगा? क्योंकि उसको मालूम है ये बाहर का जो चीज है वो क्या है, यही संस्पर्शजा होगा. खा रहे, खुशी हो रहे, वी आर जस्ट हैविंग दैट senses enjoyment. Senses are getting happy. Sit this place here. So it is what the senses are getting happy. You are not getting happy. I always give this example. You are in a college canteen. All of you must have gone to college, I'm sure. And college canteen you are sitting, having a nice crispy. आजकल हमारा ज़माने में सैंडविच समोसा होता था. आज के ज़माने में I don't know, pizza, pasta, and all that funny things are available in the thing. So we used to have in our time, nice samosa and hot chai. गर्मा गर्म चाय एंड समोसा खाने का मजा अलग आता था. वो भी प्रोफेसर को कोसते उस खाने में तो आनंद और अलग. प्रोफेसर को कोसते पकड़ा मेरे को आज क्लास में, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, वो. So we are having that. So you are enjoying a nice samosa with a nice cup of tea, with nice friends. Your boyfriend, girlfriend is also beside you. A nice view. It's raining, drizzling, very nice. एकदम बढ़िया. माहौल बढ़िया है. अचानक आपका दोस्त आता है, कहता है भैया रिजल्ट लग गया है नोटिस बोर्ड में. नोटिस बोर्ड में रिजल्ट लग गया है. माय गॉड. जैसे न्यूज मिला, वही समोसा हाथ में, वही चाय है टेबल में, वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाजू में बैठे. अब सब फीके लगे.
क्यों? कर्म याद आ गया, एग्जाम में जो कर्म किया था वो याद आ गया. So what does this mean? Has the surrounding changed? No. The surrounding has remained the same. But your situation has changed. Your inner situation, आपकी अंदर की परिस्थिति बदल गई है. So where is that happiness lying? Inside, not outside. वो समोसा अब आनंद नहीं दे रहा है, वो चाय अब मजा नहीं दे रहा है, टेंशन बढ़ गया है. अब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बजल में बैठा है, कोई दिख नहीं रहा है, बस सिर्फ अभी रेड में रहेगा, ब्लू में रहेगा, रेड में रहेगा, ब्लू में रहेगा, मार्कशीट क्या होगा, पास या फेल, यही टेंशन रहेगा. सो व्हाट डू यू मीन फ्रॉम दिस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? प्लीज रिमेंबर, सेंसेस कैन गिव यू हैप्पीनेस. इट्स नॉट अ टैंजिबल हैप्पीनेस, इट इज अ प्लेजर. इट गिव्स यू सूदनिंग इफेक्ट. जैसे आपका हाथ जल गया हो, आपने उस पर मल्लम लगाया, आइस लगाया, actually you are feeling a feeling that's better, but is the pain gone? Is the problem solved? No. Similarly, Lord is clearly saying, please don't involve yourself in sense pleasure. अक्लमंद व्यक्ति उसमें अपने आप को ढालेगा नहीं. क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि उसको पता है आदि अंत है. अभी समोसा स्टार्ट हुआ, खत्म तो हो ही जाएगा. चलो एक समोसा खाया, 2 समोसा खाया, 4 समोसा खाया, 10 समोसा खाया, इसके बाद तो नहीं खा पाओगे. सो व्हाट हैज स्टार्टेड हैज एंडेड. सच प्लेजर्स विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस. इन द नेक्स्ट वर्स लॉर्ड इज सेइंग, बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्ज ऑफ मटेरियल सेंसेस एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, ही इज वेल सिचुएटेड एंड हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. क्यों? भगवान आगे जाके कहने वाले हैं, दिस इज दुखालयम अशाश्वतम. दुखालयम. अच्छा, दुखालयम का थोड़ा विस्तार लेते हैं. नाउ किसी को भूख लगे तो आजकल के भाषा में होटल कहते हैं, बट पहले जमाने में क्या कहेंगे? भोजनालय में जाओ. राइट? भोजनालय. और पढ़ना है, लाइब्रेरी जाना है तो पुस्तकालय में जाओ. और ये क्या है? दुखालय. आलय का मतलब क्या? वहां पे वो चीज मिलेगा. जैसे आप भोजनालय चले जाओ, आपको वहां क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा. अब वहां जाके बोलेंगे नहीं मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, एक किताब चाहिए, मुझे नहीं, एनीथिंग एल्स अदर देन भोजन. इफ यू आस्क, मिलेगा? नहीं. यू विल नॉट गेट एनीथिंग एल्स अदर देन भोजन, क्योंकि वो भोजनालय. अब पुस्तकालय में जाके आप बोलोगे मुझे एक मसाला डोसा लेके आओ, नहीं लाएगा. क्यों? वहां पुस्तक मिलेगी, इकोनॉमिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बॉटनी, जो चाहिए बुक्स मिलेगी आपको. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? भाई जो आलय में है वो आलय में वही चीज मिलेगी. भोजनालय, पुस्तकालय, दुखालय. सो दिस इज दुखालय. यहां दुखी मिलने वाला है. सो बाहर खुशी ढूंढना छोड़. इफ यू आर स्टिल ट्राइंग टू नो, आज अमेजोन से ये मंगाऊंगा, फ्लिपकार्ट से ये मंगाऊंगा और मैं खुश रहूंगा, ना फ्लिपकार्ट वाला खुश है, ना वो आइटम बनाने वाला खुश है, वो भी दुखी है. हु इज नॉट हैविंग प्रॉब्लम्स इन लाइफ? एवरीवन इज अनहैप्पी. सो वन हु इज अनहैप्पी, कैन ही गिव यू हैप्पीनेस? तो कहां जाना पड़ेगा आपको खुशी के लिए? उसके पास जाना पड़ेगा जिसके पास है. और खुश कौन है? सच्चित आनंद. किसके पास है? भगवान के पास है. बिकॉज लॉर्ड इज मेड ऑफ सच्चित आनंद. तो उसके पास ही आपको खुशी मिलेगा. आपको कहीं भी और जाओगे तो खुशी नहीं मिलेगा. सो इसके लिए हम लोग हजारों फ्रेंड्स रख लो, आपको फेसबुक में फॉलोअर्स लाखों रख लो, सुख नहीं मिलेगा. मगर आप एक जन को फॉलो करो और वो है भगवान. यू विल गेट हैप्पीनेस बिकॉज He is the storehouse of happiness. He can give you happiness, and that is internally, not externally. That is internally and not externally. One cannot get happiness. It has to be internally only you can get happiness. So please understand. So there you can. This is how you have to conclude that
Acharyas and Shastras are clearly mentioning this. Please don't try to search happiness. चलो आचार्यों का बात नहीं सुना, शास्त्र का बात नहीं सुना, कम से कम भगवान की तो बात सुनो. These are now words spoken by Lord Krishna himself. Bhagavad Gita is what? Conversation between Arjuna and Krishna. कृष्ण और अर्जुन का बीच का संवाद है, और कृष्ण अर्जुन हमारे तरफ से प्रश्न पूछ रहा है, भाई ऐसा कैसा, ऐसा क्यों. तो कृष्ण उसको जवाब देते देते कई बार कहते हैं ना, सासू माँ अपनी बहू को सुनाना चाहती है और डायरेक्टली बहू को नहीं सुनाती. वो क्या करती है, अपनी बेटी को बुलाती है. तो मालूम है अपना घर का संप्रदाय क्या है, हमारा घर का रूल क्या है. हमारे घर पे ऐसे छोंक देते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे सब्जी बनाते हैं. वो एक्चुअली बोल बेटी को नहीं रही है, वो बोल अपनी बहू को है, बट बोल किसको रही है, भाई. उसी तरह भगवान भी अर्जुन को नहीं सुना रहे. अर्जुन काफी ज्ञानी है, बट कीपिंग अर्जुन एज अ मीडियम, he is telling all this to us. This message is for us, how to apply this principle of Bhagavad Gita in life is may look little challenging. It may look little, sound little challenging. अरे कैसा करेंगे प्रभु जी, ऐसा कैसा करेंगे. संस्पर्श जब होगा, हम तो भोगने के लिए तो जी रहे, खा रहे, पी रहे, उसी के लिए रोज सुबह उठ के तो यही सोचते हैं आज खाएंगे क्या, आज किस होटल में जाके खाएं, कौन सा होटल से क्या मंगा के खाएं, या वहां जाके क्या खाएं. उसके लिए तो हम लोग धरती पे अवतरण लिए. हमारा मकसद ही क्या है, धरती में अवतरण लेने का मकसद क्या है, भोगना. और अपने अपने स्तर पे. कल रात को 10-15 जा रहा था मैं, तो अपना दारू का दुकान है ना ऑपोजिट हियर सिंह. माय गॉड, ट्रैफिक जैम, all two wheeler all लगा के, ladies, gents, all have, please oh God give us that liquor, give us the liquor bottle, begging, and मैं मार रहा हूँ, ट्रॉफिक पूरा ट्रैफिक जैम. बोला, then I understand. मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् इति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां विद्धि तत्वतः. लॉर्ड सेज मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में से शायद गलती से एक भगवद गीता क्लास में आएगा, हजारों में से. ये भगवान कहते हैं, 7 चैप्टर में भगवान खुद कह रहे हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस व्हाई ओनली बॉम्बे का पॉपुलेशन इतना है. एक थिएटर में इससे 10 times मोर क्राउड विल बी देयर. बट यहाँ पे फ्री एसी, फ्री खाना, फ्री लेक्चर, पैसा देके जाएंगे हम लोग. नरक में जाएंगे ना, वी एंजॉय. हम लोग फ्री में कुछ भी नहीं जाते. वी लाइक टू गो टू नरका, वी लाइक टू पे हेवीली एंड गो टू नरका. दैट इज बेटर. ठीक. So this is what it is. People's propensity itself is to enjoy. भोग. At any time कुछ ना कुछ भोगना है. अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे लिपस्टिक होना चाहिए, अच्छा मेकअप होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए. कुछ भी फायदा नहीं है. ये दुखालयम है, दुखालय में सुख नहीं मिलने वाला. ये सब करने के बाद भी व्यक्ति दुखी है. एंड यू नो द बेस्ट दुख कब आता है? There's something called as midlife crisis. How many of you have heard this word? Or actually it's a true word. How many of you ever heard about it or thought about it? There's something called as midlife crisis. When you are nearing your 50s, late 40s, early 50s, there's a crisis. है, इससे शादी नहीं करता था. That's one of the big crisis, huh? इससे शादी नहीं करता तो कुछ और अच्छा होता. नहीं, these are very various questions which come at midlife crisis. अगर मैंने ये जॉब नहीं किया या ये धंधा नहीं किया तो अच्छा रहता था. जो लाइक से स्कूल का टीचर है, वो सोचेगा अरे मैं आईटी में जाके बहुत पैसा बनाता था. आईटी वाला सोचेगा अरे मर रहा हूँ सुबह से शाम तक बस पागल की तरह. मैं टीचर बनता तो कम से कम 9 to 5 जॉब में रहता था. थोड़ा कम हो, रात को सपने में तो सिखाना नहीं पड़ता था. या सपने में बॉस आ रहा है पढ़ाई करने के लिए, काम करवाने के लिए. सो एवरीवन इन सम फॉर्म और द अदर हैज अ मिड लाइफ क्राइसिस. एंड यू नो द सॉल्यूशन फॉर दैट?
very nice solution is given for midlife crisis. If from a young age, आप लोग हफ्ते में जाके every Sunday you write, what did you learn? What did you learn? आज ये हफ्ते में क्या experience? I'm not talking of spiritual, even day to day. उसको मैंने 100 रुपए दिए, वो भाग गया. Simple exam, वो भाग गया. So you write down all those points, like मैंने ये किया और ये मेरे साथ हुआ. So end में क्या निकलता है? 1 साल 2 साल के बाद आप अगर वो पन्ने पलटोगे, तो when will you realize, अरे बाबा, this is a lesson for me. I gave that person 100 rupees and he ran away. I gave him 500 rupees, he didn't return me back. And don't ask me, Prabhuji, what about I have taken, what do I do? Nobody asks me about that, because that is not a problem. Problem is you have given and you have not received anything. All problems are noted and solutions also, and experience. Whatever you experience, आपने note कर दिया. After that, after noting everything, after understanding everything, what do you do after 2 years if you have noted it? You go through those pages and you take an experience or action accordingly for the future. और शास्त्र क्या है? It is the same diary. चाहे हर किसी का, अजामिल का लाइफ का देख लो, ध्रुव महाराज का लाइफ का देख लो, n number of characters का लाइफ है. गोकर्ण का, धुंधुकारी का, n number of characters are there. जड़ भरत महाराज का, everyone. I mean, you can go to list n number of. And इनका जो डायरी है ना, that is शास्त्र. तो उन्होंने हमको रेडीमेड दे दिए. इन खुशियों के पीछे मत भागो, इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत भागो. दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू से. और हमको रेडीमेड मिल रहा है ना, नहीं, थोड़ा लाख खा के सीखिए. और लाख खाते खाते पूरी आयु, यू हार्डली हैव एनी टाइम लेफ्ट टू डू समथिंग अगेन. उम्र ढल गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या करो? सो मिड लाइफ क्राइसिस and crisis at the time of death is the same, whether it be shastric or be it be material. So it's better one takes experience from the shastra guidance. Okay, go to the next today's verse number 24. We have to do, right, Mataji? Done. We have done. Okay, so we'll just go through it. Anyone read it? One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose arm is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. Yes. Finally, Lord, what is Lord telling? Go inward. बाहर की तरफ मत जाना, अंदर की तरफ देखना. और हम लोग क्या देखते हैं? उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी है. बाहर की तरफ ही देखते. We are only our pride, our envy is all. Have you ever envied about yourself? धिक्कार है मुझ पे, जल्दी नहीं उठता हूँ. धिक्कार है मुझ पे, कभी भगवान की भक्ति नहीं करता हूँ. धिक्कार है मुझ पे. नहीं, पड़ोस के घर पे गाड़ी आ गई, बड़ी गाड़ी आ गई है, मेरी गाड़ी छोटी. We are busy envying the outside world. We are busy envying or being proud about, उसकी गाड़ी छोटी है, मेरी गाड़ी बड़ी. बाहर the whole life we have looked outside, we have never seen, and that is the problem. So one whose happiness is within, खुद शांत है, खुद happy है, अपने अंदर शांत है, अपने अंदर whatever it is, he is satisfied, he is happy. Who is active and rejoices within, खुद में जो शांत है, खुश है, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme. वो मोक्ष पे है. मोक्ष का मतलब क्या है? इसे जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही मोक्ष होना. जो व्यक्ति ज्ञान में है वो भी मोक्ष पे. Who is in knowledge? Knowledge of what? That his happiness lies in the lotus feet of the Lord. He is happy. He doesn't have to do special thing. अगर ये एक लाइन सुन लिया या सुधर गया ना, व्यक्ति को तकलीफ ही नहीं. ये दुखालय भी उसको सुखालय लगेगा. और हम लोग क्या है, बाहर की चीजों में सुखालय ढूंढते ढूंढते इस जीवन को सुखमय करने की कोशिश कर रहे हैं.
Yeah, next verse, please read. It is 5.25. Please. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. So these are the conditions applied if you want to get liberated. On the face of it, this is what the shloka says. So those who are beyond the duality that arise from doubt. Now what is duality and what is doubt? Very important. Yes. Paradox is a decision making. Huh? Paradox is a decision making. Decisiveness. Explain बोला है, complicate करने को नहीं. I asked you to simplify. ये करूँ या ये करूँ? That we also, all of us know duality. What duality? What क्या करूँ क्या ना करूँ? नाउ नहीं नाउ है. That is duality. भगवद क्लास में हाँ. बार पानी करने जाओ. हाँ. सैटरडे को इवनिंग में ये जाओ वहाँ जाओ. फिर what else? What else is what do you understand by duality? That raises from doubts. Speculative being that Hmm. there is God or not. The problem is when it comes to spirituality, we have got a big disease. Especially Indians, sorry to say, but we Indians have got a big disease. मेरे दादाजी बहुत बड़े भक्त थे. मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी ने संन्यास भी लिया था. So उनका लिबरेशन हो गया, तुम्हारा क्या होगा? You will have to do. See, it's like you can't say my great grandfather is brother of Tata and Ambani and Birla. What you are in devotion, everyone has to work for himself. उसको खुद के लिए करना पड़ेगा. You cannot say that yo Samat Prabhu is nice devotee. बस अपना ticket confirm है. Sorry, not possible. You have to book your own ticket, fly your own plane. You cannot depend on others. So duality means what? अब करना चाहिए, बाद में करना चाहिए. इतना करना चाहिए कि कितना करना चाहिए. माला 2 करना चाहिए, 4 माला करना चाहिए, या 16 माला करना चाहिए. तो प्रभु जी को क्या कुछ भी बोल देंगे, करना तो मुझे, उनको मेरा प्रॉब्लम मालूम नहीं. That's what we Indians are expert. So what is Lord giving this message? Very clear message. Give up this duality of doubt. क्यों डाउट आता है? जब तक जीवन में गुरु नहीं रहेगा, डाउट रहे. गुरु इज मस्ट. गुरु इज मस्ट मतलब आजकल एक नया डायलॉग चलता है, हमने गुरु बना लिया. गुरु को बनाया, गुरु बनाया. दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, है ना. वर्डिंग्स प्ले के लॉट ऑफ डिफरेंस. गुरु को बनाया, गुरु को मत बनाओ, गुरु भी मत बनाओ. गुरु के आदेश का, that is more important. So dualities and doubts arise in life, be it be material or be it be spiritual. The duality will be there unless until one doesn't follow the instructions of a spiritual master. जब तक गुरु का मार्गदर्शन न हो तब तक कुछ नहीं हो सकता. क्यों? One is confused and a true one gives from the Shastra. A true spiritual master gives his advice from the Shastra. What does Shastra said? What is the Dharma saying? As per that, a decision has to be taken. So, those who are beyond dualities that arise from doubts, whose mind is engaged within, even this is possible by the teacher, spiritual teacher only, a spiritual master. Within का मतलब क्या है? आपको क्या पहला चीज क्या सिखाया जाता है भगवद गीता क्लास में? First thing what you are taught. You are not the body. You are not the body, you are the soul. इधर आने के पहले हम सबको पता था, बट रियलाइज हुआ कभी? अरे तो कहाँ जा रहे? हाँ? Tell me. Before coming over here, did we realize that we are not the body, we are the soul? We knew. लिखते थे ना सब लोग. कोई मर गया तो हमें भी जाते थे ना, इनका अपना प्रिंटिंग प्रेस में जाके देते थे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी नैनम जयति पावका. समझ में कुछ नहीं आता. वो उल्टा कभी कभी वो प्रिंटिंग प्रेस वाला साहब ये हमेशा सब लोग यही छापते. हाँ छाप सब लोग छापते. हाँ हाँ. सैड डिसमिसल ऑफ सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो. हाँ वासाम से जीरड़ा नहीं, क्योंकि वो प्रेस वाले ने बोला था.
The first thing what you learn when you come to a Bhagavad Gita classes, you are not the body, you are the soul. एक बार वो पता चलने के बाद, the problem is, no, the better side of this problem is, यहाँ पे this हरे कृष्णा लैंड, जितने भी चलते हुए जीव है ना, पैरों में चलने वाले, द्वीपादि, सबको पता है आई एम नॉट द बॉडी, but how many people can realize it? You know, when sometimes हमारे घर पे खाना अच्छा नहीं बना, तो my children eat very less, and they say we are just eating to keep our body and soul together. We are just eating to keep our body. मतलब इतना कम खा रहे हैं तो बस मरेंगे नहीं. So what does this mean? That time the realization of soul comes. But when you are glutting in nice food, that time you remember that you are not the soul and body is eating. No. So please understand, very important is we can go inward only when we understand that this external thing which we are carrying, which we think is our property, and इसको खिला पिला के मोटा कर रहे हैं हम लोग, बट अंदर का चीज को कभी कुछ नहीं खिलाया. आत्मा को कब खाना खिलाया? लास्ट व्हेन डिड वी फीड आवर सोल? कब खिलाया प्रभु आपने आत्मा को खाना खिलाया? हाँ, तो भजन, और जो भजन कीर्तन नहीं करता उसके लिए, उसकी आत्मा तो एकदम सोने के पिंजरे में पड़े हुए मरियल पक्षी की तरह है. There are so many nice rich people who got all the opulences, you know, stretch limousine, car, nice, what do you say, house, bungalow, name it, chartered plane, chartered flight, everything they have got. Their own plane, everything, yacht, everything they are having. But they don't have any God or bhajan and kirtan in their life. तो फिर क्या होगा? जीवन में कोई भजन कीर्तन नहीं है तो आत्मा दुखी रहेगी और शरीर सुखी रहेगा. काजू बादाम खाने से शरीर सुख होता है, कभी आत्मा को सुख नहीं मिलती है. आत्मा को सुख चाहिए तो, बिकॉज आत्मा इज स्पिरिचुअल, गॉड इज स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल चीज को स्पिरिचुअल चीज ही चार्ज कर सकता है. जैसे आपके घर में अगर इलेक्ट्रिकल स्कूटर या इलेक्ट्रिकल कार है, उसको पानी से नहीं इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज करना पड़ेगा. यू कैन नॉट पुट एनी अदर थिंग इनसाइड. और पेट्रोल भी नहीं डाल सकते हैं. यू विल हैव टू पुट अ स्पिरिचुअल थिंग ओनली, और इलेक्ट्रिकल थिंग ओनली टू चार्ज द बैटरी. सिमिलरली द सोल इज स्पिरिचुअल, उसको चार्ज करने के लिए भी स्पिरिचुअल एनर्जी ही लगेगा. एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इज ओनली अवेलेबल विद गॉड, नो वन एल्स. Guru is a medium. Guru is not God. Guru may be godly, but Guru can never become God. Let this be very clear. In life, Guru can never become God. He can become godly because he is showing you the path towards home. So that's most important. Please understand this. जो व्यक्ति भगवान के पास connected, मतलब is connected to God, then he will be engaged into, his mind will be always engaged into happiness. So those who are beyond the dualities that raise from doubts, whose minds are engaged within, his mind will be engaged only when he is connected to God, who are always busy working for the welfare of other living beings. Very important point. Welfare of other living beings. उसका मतलब क्या है? मानव सेवा ही माधव सेवा, बराबर. तो हम लोग तो मानव सेवा कर ही नहीं रहे. कौन मानव सेवा कर? प्लीज अंडरस्टैंड, मानव सेवा को अगर आप शारीरिक स्तर पे लेके आते हो ना, ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, इफ यू ब्रिंग इट, व्हाट कैन यू गिव? सम फूड, मेडिकल एड, क्लोथिंग, व्हाट एल्स? बस इसके अलावा कुछ नहीं. हाउसिंग की तरह से घर ने झोपड़ा दे दिया, अनाथ आश्रम बना दिया, या वुमेन शेल्टर बना दिया, आपने ऐसा कुछ कर दिया, बस. दैट्स द मैक्स यू कैन डू, वेयर बिकॉज यू आर इन द बॉडीली प्लेटफॉर्म. बट आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? बट इफ यू गो टू द सोल प्लेटफॉर्म, आत्मा प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एज अ सोशल सर्विस? Related to someone
Connecting someone to God. कनेक्टिंग पीपल टू गॉड. सो अगर आप लोग सोच रहे हो हम लोग कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, समाज सेवा सबसे बड़ा कर रहे हैं. क्यों? आई ऑलवेज गिव द स्टोरी इन द स्टार्टिंग क्लास, बट आई विल टेल इट अगेन वंस. एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ मेला में चला गया. हाँ, मेला में जाके घूम रहा था. थोड़ी देर के बाद बच्चा पिता से अलग हो. He got separated, but he was enjoying the mela nicely. Merry-go-round is going on, this is going on, that is going on. After some time, the child started crying because he was hungry. छोटा बच्चा था, बोल नहीं पा रहा था, रोने लगा. तो एक अच्छा व्यक्ति आया, साई कृष्ण जैसा, बोला क्या चाहिए बेटा? रो रहा है तो खाएगा? अच्छा ठीक. उसको थोड़ा खाना खिलाया. फिर वापस बच्चा खुश हो गया, खाना पेट भर गया, खेलने लगा. He was playing here and there. Suddenly the child started crying after some time. And he realized what happened. Oh, he's feeling sleepy, he's feeling tired. Okay, beta, you sit here. Where is your father? I don't know, I lost him. Okay, fine. Then they saw this child started shivering. He's getting fever. So someone bought a nice kambal, put a nice bedding for him and made him sleep. So next day morning, again the child got up, again the child started crying. So everyone asked, अरे बेटा क्यों रो रहा है? भूख लगी है. Fine. So someone came who knew this child, who knew this house from where this child has come. He said, oh, come, I'll take you to your father. I'll take you to your father or to your house where you have come from. I know his father, I know his mother, I know his whole family. And he took him and dropped him at this place. So who did the right or the best job? One who gave him food, one who gave him medicines, one who gave him a blanket, one who made him sleep over there, or one who took him to his father? कैसा? खाना खिलाना बड़ी बात है ना. मानव सेवा ही माधव सेवा ना. हाँ, खाना खिलाना चाहिए. हाँ, उसका अच्छा दवा दारू कराना चाहिए. चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर गुड, बट दिस इज द बेस्ट. तो ये जो बाकी का जितना भी सेवा है ना, वो अच्छी सेवा है. किसी को खाना खिलाना, किसी को मेडिकल एड हेल्प कराना, NGOs who supply sanitary napkins to the वाड़ा जैसा एरिया में सब जाके they supply लेडीज को, जो विलेज लेडीज है उनको sanitary napkins देते हैं. It's a good job. I'm not saying it's bad, but it's not the best because it is only solving a problem temporarily. But you as a soul, what is the problem? We are in repeated cycle of birth and death. हम आत्मा बन के क्या कर रहे हैं? वापस जन्म मृत्यु. तो जैसे वो व्यक्ति ने बच्चे को अपने माता पिता के पास लेके जाके छोड़ दिया, हमारा असली माता पिता कौन है? भगवान, द सुप्रीम लॉर्ड, विष्णु, कृष्णा, राम, whatever you call it, he is our supreme God. तो उसके पास लेके जाके छोड़ना वो सबसे बढ़िया काम है. या एंड बेस्ट इज इस्कॉन दोनों काम करते हैं. वो भी खिलाते हैं, प्रसाद भी खिलाता है और क्लास भी लेते हैं, पर लोग आते नहीं, वो आता है. So please understand, busy in the working for the welfare of all living beings who are free from sin or from all sins, achieve liberation. I have always said, why I am interested in taking class? What is the benefit I get? मेरा भी स्वार्थ है, I tell you honestly, मेरा स्वार्थ है. 18 चैप्टर में लिखा है जो ये मेरा मैसेज, one who spreads this message of mine to my devotees, there is no one more dearer to me than that. So I want to become dearer to Krishna. ये मेरा स्वार्थ है और कोई स्वार्थ नहीं है. और एट द सेम टाइम ऊपर अकेले जो क्या करूंगा, थोड़ा कथा के लोग भी चाहिए ना. कि जीवन भर यही काम किया है तो वहां पे भी जाके वही सेवा करूंगा, भगवान के गुण गाऊंगा, भगवान की कथा गाऊंगा. तो वो कोई करने के लिए मेरे कोई ना कोई कंपनी चाहिए ना, अपने आप को सुनाना पड़ेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ही इज लिबरेटेड इन द सुप्रीम. उसका मुक्ति गारंटीड है. So you don't have to be sitting in this side of the chair to become liberated. Sitting on that side of the chair also, you can get liberated very easily.
without it. We'll take one more verse and then we'll close. काम क्रोध विमुक्तानां यान्ति यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मनः. Can anyone read the translation? Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. I think this sloka is written for you all. है ना? Those who are free from anger, free from all material desires. है ना? बहुत आसान है ना बोलना. It's very easy to say this, right? क्रोध से छोड़ दो. यही बच्चा जाके घर में जाके धूम मचाएगा तो डिशुम डिशुम. ये उस क्रोध की बात नहीं हो रही है. ये उस क्रोध की बात नहीं हो रही है जो हम लोग जो भौतिक लेवल पे है ना, कोई आके गाड़ी ठोक दिया, शांत घूमे, प्रभु जी ने बोला है शांत रहना है, ये वहां पे. सी प्लीज अंडरस्टैंड, अगर अर्जुन के अंदर क्रोध नहीं होता, इज इट पॉसिबल शांत मन से युद्ध करने का? कैन यू फाइट? यू नो, शांत शांति से मारूंगा बाण. इज इट पॉसिबल फॉर हिम? He has to fight with vigor and anger. The Lord is not telling Arjuna, because after listening to the Bhagavad Gita only he fought the war. Please understand this, get it very clear. Starting of the war, Arjuna got this doubt. मैं युद्ध कैसे लड़ूं? मेरे काका है, मेरे चाचा है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, उनको कैसे मारूं? पूरा भगवद गीता सुना रहा है. वहां पे क्या बोल रहा है? फ्री फ्रॉम एंगर. फ्री फ्रॉम, हाँ वही तो मैं कर रहा था. मैंने एंगर छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया, द्रौपदी पे जो अत्याचार किया वो मैंने छोड़ दिया. नो, इज नॉट सेइंग दैट एंगर एट ऑल. प्लीज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सम थिंग्स हैव टू बी टेकन ग्रॉस, बट सम थिंग्स हैव टू बी टेकन द सटल, नॉट द एक्चुअल वर्ड टू वर्ड. वही बोल दिया, वही वर्ड नहीं ले सकते. सो दोज हु आर फ्री फ्रॉम एंगर एंड ऑल मटेरियल डिजायर्स, the anger which arises from material desires is that what is anger which has been spoken of over here. जैसे बोलते हैं ना, भगवान मेरे पड़ोसी को दिया, मुझे नहीं दिया, मेरे इसको दिया, उसको दिया, मुझे नहीं दिया. That anger what we have got, because we are always angry on God. You know that? कुछ भी नहीं हुआ ना, you will do a wrong investment, and investment डूब गया तो भगवान ने नहीं किया. इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग एंड गलती भगवान का. एवरीवन इज बिजी ब्लेमिंग गॉड फॉर देयर ओन मिस्टेक्स और देयर ओन कर्मस. उनका कर्म भी हो सकता है. अभी आपका नसीब में नहीं लिखा है, वो पैसे डूबने लिखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कांट डू एनीथिंग फॉर दैट एंड यू ब्लेम गॉड. हाँ, मैं ही मिला तुमको, मेरे साथ ही ऐसा होना था. मैं जैसे भगवान के लिए 140 करोड़ की जनता में आप ही दिख रहे हो. भगवान को पड़ी नहीं है बाकी तुम. एंड ओनली 140 करोड़ इंडिया ह्यूमंस. बाकी एनिमल्स का भी देख रहे हैं, पूरा सृष्टि का देख रहे हैं. तो काम धंधा नहीं है. बट वी आर एंग्री ऑन हिम बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स, एंड आवर डिजायर्स हैव नो एंड. जस्ट इमेजिन लॉर्ड अपीयर्स हियर, कम्स ऑन द फोटो. यस, भगवद गीता क्लास के ग्रुप बच्चों क्या चाहिए आपको? धक्कम दुखी हो, हट दे. मेरे को आगे जाने दे, मेरे को आगे जाने दे. आई हैव गॉट माई डिमांड्स, मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड माइंड यू, यहाँ बच्चा भी बाप को धक्का मार के जाएगा, बोलेगा हटो हटो, आप भगवान आ गया, मेरा काम कोई चीज मांग रहा है. बट मांगेंगे क्या? मांगेंगे क्या? वॉट विल यू आस्क? हाँ, हाउ? भौतिक सुख ठीक है, बट ऑन व्हाट क्राइटेरिया? कुछ नहीं चीज प्रभु जी को देख के हुए बस पड़ेगा. आप लाइन में पीछे खड़ा है ना. आप लाइन में पीछे खड़ा रहो. This is called self-realization. Tell me, what will you ask? Yes, Anita Mataji, what will you ask? Bodily pleasure. भगवान से तो भक्ति ही मांग सकते हैं. भगवान से भक्ति मांगेंगे. हाँ, आप क्या करेंगे? मतलब bodily pleasure ही मांगते हैं. Bodily pleasure मांग सकते हैं. There is no compulsion. See, that's the problem is there is no compulsion that you have to ask for bodily things. Dhruv Maharaj,
at the age of 3 years. आवाज कहाँ से आ रहा है? As a small kid, he is praying to the Lord. And what was the purpose of his praying? उसके पीछे मकसद क्या था? He wanted a kingdom more than that, bigger than that of his grandfather, and his grandfather was Brahma. ब्रह्मा का क्रिएटर था, ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, उससे भी बड़ा क्रिएशन मांग रहा था ध्रुव महाराज. बट जब भगवान को देखा, व्हाट डिड ही आस्क? तो कुछ नहीं मांगना है, आपसे क्या मांगना है? मैं तो कंकड़ पत्थर मांग रहा था जब मेरे सामने असली हीरा खड़ा है. बट द प्रॉब्लम इज, अभी तक हमारे अंदर वो भाव ही नहीं जागा है. We have not yet, enlightened ourselves to ask for such things or just to praise the Lord. हम लोग घर में जितने भी पूजा पाठ सो कॉल्ड करते हैं, किसके लिए करते हैं? जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. भगवान आज मेरा काम धंधा का पास करा दे, ये करा दे, टेंडर पास करा दे, दिस करा दे, वो करा दे. बस वो सब अपने आप, in due course of time it will happen. You don't have to do a special endeavor. Overnight things change from good to bad and bad to good. So बड़े बड़े राजा भी रंग एक रात को हो गए, और बड़े बड़े रंग भी राजा एक रात में हो गए. Why you are busy asking for that? But the problem is we are रसगुल्ले की तरह हम लोग सोख हो चुके हैं. रसगुल्ला हमेशा ना मीठा जल में हमेशा डूबा रहता है, चाशनी में, तो हमेशा इट्स ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद दैट. And the problem is, even if you don't want, like for example, Nitish, he doesn't want. He will not. If God comes, he will change his face and stand. But other people, अरे मांग ले, जान से मांग ले, and he will also come to that. आप सब लोग बोल रहे, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? मैं भी कुछ मांग लेता हूँ. This is what happens. Whereas, if you are in association with renunciates, those who have renounced, then your ideology changes. The problem is our ideology doesn't change because we are in a circle of materialistic people. हम उसी सर्कल में हम घूम रहे हैं, and that is why our mind is getting pulled and attracted. Why we want to have? Why do you want to go to big fashion shows and this and that? Why? Field demands. But when you go there, how many times you actually think about God? Not possible. They are pumping their material views and material ideas, and that is how you are, formatted. That's what the thing is called, ITP industry calls it as, you get formatted or you get changed or you get coded in that language. मांग, मैं भी मांग रहा हूँ, तू भी मांग. Everywhere, it's only begging. High class begging, low class begging, but it's begging. It's very difficult to come out of that thought process because that's from that day one we have been tuned to it. That is why please come out of this thinking. Bill Gates ने कौन सा लक्ष्मी पूजन किया था? I'm not asking you to stop Lakshmi Pujan. Please don't misinterpret this. Please do your puja, your duties, your whatever the rituals are there in your house. Please do it, but not with an expectation. तभी याद करना इस बात को, अरे इसने तो लक्ष्मी माता का कोई पूजा नहीं किया था, फिर भी उसको लक्ष्मी बरसी. एलॉन मस्क ने कितना लक्ष्मी पूजन किया, उसके घर पे पैसा बरस रहा है. तो मैं मुझे क्या करना चाहिए? We have to just simply love God. That's it. हमको सिर्फ भगवान से प्यार करना है और कुछ नहीं. उसमें ना फायदा, ना नुकसान, ना प्लस या माइनस, कुछ भी नहीं. So please understand, this is very important that we come out of the zone of sense pleasure, sense requirement and sense gratification. So those free from anger and all material desires who are self-realized. This is self-realization, that we don't want everything, because whatever we get materially will be for this body and not for the soul. And whatever you get, $1 trillion, सब छोड़ के जाना है, लेके नहीं जा सकते. You cannot carry all the wealth in this world, even if you receive that. आपको छोड़ के जाना, लेके नहीं जाना है. फिर भी दिल मांगे मोर.
That is what has been. That is why Prabhupada uses the word conditioned soul. What is the meaning of conditioned soul? इसी धरती में इसी मतलब बार बार जन्म लेके he has been conditioned such a way. बचपन से माँ भी बोलेगी बेटा भगवान से मांग अच्छा बुद्धि मांग, अच्छा पैसा मांग, अच्छा पढ़, नहीं तो बीवी नहीं मिलेगी, हाँ अच्छा कर, ये कर वो कर. You know, it's been trained. If you don't do this, you will not get this. You don't do this, you will not get this. And that has gone in our system. It has gone in our blood, and that is what. That's why we have shifted our paradigm. If you read Ramayana, you read Mahabharata, people were God loving. From there, people have now become God fearing. They have lost the love towards God. They have got only fear towards God. अगर इतना डर होता, क्या विदुरानी भगवान को छिलके खिला पाती? If she was God fearing, she was God loving. That's a proof that she was loving God. Your Shabari feeding him the most jungly fruits, the most lowest of its kind. Bear is supposed to be the lowest kind. वो जंगल में मिलता वही मिलता, वो खिला दिया. भगवान भी चल के गए उसके घर पे. It was God loving. It's not God. अरे भगवान आएंगे. She was cleaning the house daily. She was cleaning the roads daily. शबरी रोज साफ करती थी. क्यों? भगवान आएंगे. भगवान आए. मेरे गुरु ने बोला है, गुरु के वचनों पे उनको ये मतंग ऋषि ने बोला है, गुरु भगवान आएंगे और आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मैं खिलाऊंगी. Daily she used to keep fresh fruits and करके. तो God is, we have to love God. We don't have to fear. But the problem is, people are only God fearing. And today, there is another tragedy. And the tragedy is, people are now thinking of only doing reels in the temple rather than praying to God. And the problem is, there are idiots who are watching that. I call those who are watching bigger idiots than those who are making it. They are making because you are watching. You stop watching, they will not see. And is that a place for making your reels? ठीक है, तुम waterfalls में करो, पानी में डूबो, बात. आजकल बहुत डूब रहे हैं रील के चक्कर. But what about those who are actually praying? We are also. अच्छा, अपना ध्यान भी भगवान को नमन कर रहे हैं और वो रील बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं. What nonsense. At least you use your intelligence, your mind. आपकी बुद्धि तो यूज करो, अपना बुद्धि यूज करना चाहिए. That is self realization. ये जो कर रहे हैं वो वेस्ट है. क्यों? ये शास्त्र प्रमाण नहीं है. शास्त्र प्रमाण करो. आप बोलेंगे प्रभु जी आप भी तो अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल रहे हो. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई एंटरटेनमेंट, नॉर फॉर योर एंटरटेनमेंट. आई एम डूइंग इट फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ. इवन दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग समथिंग, दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग, बट उसमें अंतर है, इसमें अंतर है. सो प्लीज, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन. जिस दिन आप समझ गए हाँ मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं और मुझे मेरे आत्मा की गति के लिए कुछ करना है. शरीर का गति एक ही है. इनफैक्ट शास्त्र कहते हैं 3 गति है, कृमि, भस्म या बीज. या तो आपको जलाया जाएगा, या तो आपको दफनाया जाएगा, या चील कौवे आपका नोच नोच के शरीर खाएंगे. मतलब क्या होगा? आप उस पक्षी का विष्टा टॉयलेट बनेंगे. सिंपल. You will be the excreta of that animal. So your body, जिस पे आप बढ़िया शैम्पू, साबुन, क्रीम, ब्यूटी पार्लर जो भी कर रहे हो, सब वेस्ट है. एंड में या तो आपको जलाया जाएगा तो भस्म हो जाएगा, या तो दफनाएगा तो कीड़े, छोटे छोटे कीड़े हैं वो खाएंगे, या तो फिर जो पारसी लोग करते हैं ना वैसा, दे थ्रो इट टू द एनिमल्स एंड आप गिद्ध के विष्टा स्टूल बनेंगे. तो ये शरीर का यही गति है, कुछ भी कर लो. बट आत्मा का गति आपके कर्मों पे निर्धारित है. इफ यू आर प्लानिंग टू डू डिवोशन एंड एंड सोल्यूशन टू द सोल, इट इज बेटर टेकिंग बैक टू वेयर इट बिलोंग्स टू. वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो वी हैव टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दैट्स व्हाई गौरव प्रभु सेज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट. आई लव द स्टेटमेंट ऑफ दिस. This body is like a rocket. Use it like a rocket, proper rocket.
to launch the satellite of your soul in the spiritual orbit. This is what Gaurang Prabhu says. Very nice, very meaningful. This body is like a rocket. बिना रॉकेट का आप सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो क्या? You cannot. So to launch a satellite, you need a rocket in good condition. That's why last minute before take off also, they sometimes abort. They abort the mission. They find somewhere there is some defect or error, and they will recondition it or recheck it, and then उसको वापस रॉकेट को भेजेंगे. और हमारा रॉकेट ऐसा मतलब फुस वापस धरती पे आके गिर, क्योंकि हम लोगों ने कभी उसका भक्ति की तरफ मुंह मोड़ा ही नहीं. No, see many times rockets crash, right? They just take off and zoom, it falls down. अपना तो fixed है, zoom. देखो this zoom. Because repeatedly, time and again we have been taking birth and death, and that is again landing back in the same earth. वापस उसी को repair करेगा, fit करेगा, zoom. So that is what our problem is. So do your devotion in such a way that you launch the rocket in a perfect manner, and the satellite के स्वरूप में जो आपकी आत्मा है वो, so rocket has to be in a very good condition. Here the condition is not just the physical condition, the spiritual condition also got to be very strong. नहीं तो मालूम पड़ा एनर्जी ओवर, फ्यूल ओवर, भगवान का रलम इधर है, यहाँ तक पहुंचे तो वापस. So you have to have proper spiritual energy also and proper material energy. Then only this is possible. Okay, with this I close today's class.